हाथ हो गए। Hello, Dipti ma'am. Chalo, that's nice. Your connection is working. Hello, Sushma ma'am. Welcome to another workshop. Just let us wait for just 1 or 2 minutes. Let other people join and we'll start our work for today. Today we'll be creating the glass jars. This is the Kinetas bottle which I have taken. Then this is a mini jar. And this is the jam bottle, honey bottle, which we usually get with honey. This is the honey bottle which we usually get with honey. So I have taken the honey bottle. I have taken 3 types of bottle. For today's class, we will be needing the glass colors and these 3D liners. We will not be requiring a lot of things, just 2 things, Fevicryl glass colors and Fevicryl 3D liners. And 3D liners is also your choice, whichever color you want to do, you can do on that. Before starting, this is my first session with glass colors. I think I have not done any session with glass colors. Hello Supriya ma'am. I have never done any session with glass colors. So first I wanted to share some tips while using hello Gayatri ma'am, good evening. First of all, I need to share some tips which is very essential. Whenever you are working on any kind of glass bottle, first make it sure that it is absolutely clean. Because sorry, जब आप उसके ऊपर ग्लास कलर से वर्क कर दोगे तो फिर आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हो. तो outer should be absolute clean, dry when you are using. Then the second thing is, when you are using your liners on glass, just be careful that your liner should be very fluent. एकदम स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए. मैं आपको भी जब करके बताऊंगी तो दिखाऊंगी कि लाइन एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए. Then always, if you are doing a small article like this glass jar, अगर आप बड़ी बॉटल कर रहे हो then it is okay, but if you are using a small bottle like this, always have a Q-tip handy with you. मैंने यहाँ पे रखी थी. बिकॉज अगर कोई थोड़ा सा भी फैलता है या कुछ भी होता है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप Q-टिप से उसको क्लीन कर लो साथ साथ. 1 मिनट, मैंने अपनी Q-टिप पता नहीं कहाँ रख दिया. पानी टेबल के नीचे वो जो आपका दोबारा पाउच उसके नीचे रखिए शायद. ओके, हियर आई एम हैविंग द Q-टिप. और ग्लास कलर्स आप कभी भी यूज करते हो तो अगर इफ यू आर यूजिंग ऑन अ स्मॉल आर्टिकल तो प्लीज उसको डायरेक्टली यूज मत करो. यूज विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. हेलो मोना मैम. These are some of the tips. Let us start with the article. टाइम के साथ साथ मैं आपको जो थोड़ा बहुत और मुझे याद आता रहेगा वो मैं बता दूंगी. ये मैंने लिख के रखा हुआ था कि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि these are small tips but
they are quite useful when we do the activity. अब इसके ऊपर ये वाला थोड़ा सा ग्लास 3D लाइनर का वर्क मैंने करके रखा है ताकि इसके ऊपर मैं आपको ग्लास कलर फिलिंग करके बता सकूं. Now first how to create the design. Monama, I have just explained, I have given some tips to use glass colors and 3D liners when we do on small articles. I will repeat myself. अब इस that was a Google reference pic. तो सबसे पहले हमें अपना डिजाइन क्रिएट करना है. I hope this sheet is clear. मैंने ये ऑलरेडी वैसे बना के रखा है. इफ यू वांट मैं इसको भी शेयर कर दूंगी, बट एक्चुअली इट इज वेरी इजी टू क्रिएट. तो मेरे को लग रहा था कि मैं एक बार पेंसिल से आपको बनाकर दिखाऊंगी. सपोज दिस इज अ स्क्वायर. Now what I have done is यहाँ पे एक I have created a curved line and then I have joined it like this to create a leaf pattern. Then again one curve from here and one curve from here. और ऐसे ऐसे आप जितने चाहे आप यू कैन गिव द कर्व्स टू क्रिएट दिस पैटर्न. अब यहाँ पे दे हैव क्रिएटेड दिस सर्कुलर लाइक थिंग स्पाइरल और यहाँ पे आप इसको बंद करेंगे. Then you can give some drops. This is the way we have to create our pattern. It is completely your choice. You want to take this design or you can take any design of your choice. The techniques should be same, the usage of glass colors and 3D liners. The design is completely your choice if you want to take it or not. One more thing which we have to take care during usage of glass colors is glass colors are liquid. If you will see, acrylic colors are thick in consistency and these are very thin, watery colors. So they want a lining जिसके बाहर वो ना निकले. So when you will create this 3D outline pattern, तो you have to make sure कि हर जगह it is closed. यहाँ से अगर आप if you will see all the petals are closed. अगर ये close नहीं होंगी तो आपका जो glass color है it will come out of the boundary. तो जितनी भी आप boundaries बनाएंगे you have to close them. जितनी भी आप देख रहे होंगे you have to close them. मैंने ऊपर से सबको seal किया है. The seal is very necessary, otherwise वो they will flow out. जैसे अगर यहाँ पर भी देखोगे मुझे कुछ नहीं मिला था तो मैंने एक सीधी लाइन लगा दी है ताकि कलर फ्लो बाहर ना हो. Now we'll continue with this pattern. One more thing, when we keep the 3D liners, normally winters के अंदर एक ये शिकायत होती है कि 3D liners does not work properly. तो आप कोई भी एक ऐसी बॉटल या ऐसे उसको बॉक्स में रखो ताकि हेलो सलोनी मैम हाउ आर यू कि आपके 3D लाइनर्स का जो फ्लो है वो इस वे में रहे ताकि जब भी आप उसको यूज करोगे तो उसका फ्लो डायरेक्ट आएगा. और
नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास जो भी मटेरियल पिक्स सब शेयर करते हैं वो 3D लाइनर्स ऐसे रखे हुए होते हैं उनके बॉक्सेस में. मेरे पास जितनी भी पिक्स शेयर होती हैं हमेशा 3D लाइनर्स आर केप्ट लाइक दिस. बट दिस इज नॉट द राइट वे. This is not the right way to keep the 3D liners. 3D liners should always be kept in this kind of position. It is very necessary to maintain the flow of the 3D liners. So let us start our article. This was the way. I hope I made myself clear. You are able to see the drawing. I'll share this in the group. It is very easy. आप खुद उसको hand से बनाओगे और otherwise if you are not able to, if you are not convenient in drawing with your hand, what you can do, you can take a printout. You can keep the carbon paper and above this the sheet and you can just trace it on the glass. Trace हो जाता है. And one more tip, please never use permanent marker on these glass surfaces. Because what will happen, ऊपर से तो अगर आप उसको 3D लाइनर से कवर कर लोगे बट अंदर से 3D जो परमानेंट मार्कर होता है दैट इज विजिबल. तो नेवर यूज ब्लैक और डार्क कलर्ड स्केच पेन्स ऑन दीज काइंड ऑफ बॉटल्स. These were some tricks and tips. Then I was talking about this liner. जैसे मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ कि जो हम लाइनर लगाते हैं मेक श्योर कि हमारी लाइन ऐसे सीधी आए. अगर हमारी लाइन ऐसे ऐसे आएगी तो हमारा आर्टिकल ठीक नहीं लगेगा. तो आपका जो लाइनर का फ्लो होना चाहिए वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए. Now these are the two patterns which I have already done. ताकि इसका लाइनर सूख जाए तो आई कैन एबल टू फिल द ग्लास कलर्स इन इट. यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके बता रही हूँ यही दोनों पैटर्न्स. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर. Again I'm starting from here. I'm taking this and I'm just creating a leaf like structure. जब एक बेसिक हमारी लीफ आ गई तो हमें इसको डिफरेंट आई हैव टू गिव द कर्व्स. इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू वर्क व्हाइल होल्डिंग द बॉटल. अब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो व्हाट आई डू, आई जस्ट रिमूव इट बाय द हेल्प ऑफ Q-tip. Q-tip is very necessary when you work with the on the glass surface. अब I just need to extend this design. मुझे जैसे मर्जी, if I want to create the petals, I can create the petals. अब यहाँ पे मैं एक लाइन बना के छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करना है. Now I have to fill here. Hello Jyoti. ताकि ये वाला कलर जो है मैं वो सिंगल फिल करूंगी. Now this portion is left. Hello Aisha.
यहाँ पे सर्कल, स्पाइरल, और फिर स्पाइरल से कनेक्टिंग लाइन्स। अगर आप देखोगे तो दिस डिजाइन इज टोटली इन सिमेट्री। अभी आई लेफ्ट विद दिस साइड। अब मैं इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करूंगी। आई एम प्लेसिंग अ लीफ इन बिटवीन। अब आई हैव टू कवर दिस स्पेसेस। अब मैं यहाँ पे पेटल्स दे रही हूँ। यही पेटल मैं यहाँ दे रही हूँ और इसको मैं एक लाइन से जोड़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक दूसरा जिगजैग डिजाइन दे दिया है। और यहाँ पे मैं स्पाइरल्स दे रही हूँ। अब आप इस पूरे जार को देखोगे तो इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो सबसे पहले चारों तरफ आई हैव गिवन द सर्कुलर बाउंड्री ताकि मेरा कलर बाहर स्पिल ना हो, और हर जगह पे मैंने उसको कलर को स्टॉप करने के लिए आई हैव गिवन द 3D लाइन। तो दिस वे my 3D liner is complete. I'm just keeping it aside. I got a request from सोनिया मैम कि उनके पास 3D ये ग्लास कलर्स ही नहीं है। तो she wanted to do the article but glass colors उनके पास नहीं है। तो what we can do is, उनके पास एक colored bottle, she said कि उनके पास colored bottle है। तो what we can do is ये ग्लास कलर है ब्लैक कलर का। इन केस किसी के पास ग्लास कलर्स ना हो तो दे कैन डू दिस। मेरे पास कलर बॉटल नहीं थी इसलिए आई एम कलरिंग दिस बॉटल फर्स्ट और उसके बाद आई वर्क ऑन दिस। अगर सपोज करो ये किसी कलर की बॉटल हो तो व्हाट वी कैन डू इज, आपको किसी भी कलर की बॉटल बनानी हो तो जस्ट पोर द फुल बॉटल इन इट। मुझे ये बॉटल ब्लैक कलर की करनी है। Good afternoon, sir. I'm just coloring this whole bottle white, whole bottle black. So with the help of the glass colors, जो सेम ग्लास की प्लेन बॉटल थी, we have colored this bottle in the black color.
और अभी थोड़ी देर तक हमें इसको अंदर कलर रहने देना है। जब तक ये कलर हमें थोड़ी थोड़ी देर में वी हैव टू रिवॉल्व दिस बॉटल, और एंड में हम इसका सारा कलर वापस जितना भी इसमें एक्सेस कलर बच जाएगा बॉटल में वो हम अपने बॉटल के अंदर we'll keep that safe in a bottle. So this way we can color the bottle. Now I'm keeping this aside and coming back to my main article. इस बॉटल को मैं थोड़ा सा लटा के रख रही हूँ और टाइम टू टाइम मैं इसको थोड़ा सा घुमाती रहूंगी। अब in my palette I'm taking some yellow. Hello Anu ma'am. अब मैं जो ये बना रही हूँ I'm taking the combination of yellow, orange and pink. तो मैंने थोड़े थोड़े ग्लास कलर्स आई हैव टेकन इट ऑन माय पैलेट। देखो जितना भी ग्लास कलर है इतनी देर में ये देखिए नीचे बैठ गया है, तो हमें टाइम टू टाइम इसको रिवॉल्व करना पड़ेगा बॉटल को। आई एम टेकिंग येलो वाला, और जो मेरी साइड सूख गई हैं दोनों मैं उसमें करूंगी अभी। अगर आप डायरेक्टली ट्यूब से करते हो इससे तो इसके अंदर कई बार बबल्स आ जाते हैं, तो अगर आप इससे करोगे ब्रश से तो आपके बबल्स भी नहीं आएंगे। अब जहां जहां पे मुझे येलो करना है एक तरफ वो मैं कर रही हूँ। डोंट फिल एक्स्ट्रा कलर्स। अब इफ यू कैन सी ये कलर्स एक बाउंड्री, जो हमारा 3D कलर है वो इसके लिए एक वॉल बन गया है जो उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, अदरवाइज इट इज सो फ्लोई कि ये बाहर निकल जाएंगे। अगर हमारा 3D लाइनर कवर भी हो रहा है तो इट इज नॉट एन इशू, क्योंकि हमें इसके ऊपर अभी एक कोटिंग 3D लाइनर की और देनी है।
Hello Komal ma'am, thank you so much. जहाँ पे भी आपको लगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर है, प्लीज रिमूव द एक्स्ट्रा कलर. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर है, रिमूविंग इट, क्योंकि अगर मैं दूसरी साइड पे जब मैं लेके जाऊंगी तो उसको ये फ्लो कर जाएगा आउटसाइड्स. अब यू हैव टू चूज वन कॉम्बिनेशन. अगर आप ब्लू का चूज कर रहे हो तो टेक ब्लू, ग्रीन. जैसे मैंने अब रेड ऑरेंज को यूज किया है तो मैं इसी की फैमिली के कलर्स ले रही हूँ. आई हैव टेकन ऑरेंज, येलो एंड पिंक. थैंक यू तनिष्का. I hope everyone is enjoying the session and liking the article. Thank you Hardik, thank you Saloni ma'am. Color combination is your choice. Design is your choice. But the technique should be the same. अब इसके अंदर मैं एक डिफरेंट कलर भरूंगी चारों कॉर्नर्स के अंदर. तो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट साइड. If it is visible, I've not taken a very sharp brush. In these kind of articles, you can use your old brushes also to never throw them. Mona ma'am, glass colors are never shaked. अगर आप उनको शेक करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे बबल्स डेवलप हो जाएंगे जिसको आपको फोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो whenever you use glass colors, हमेशा उसको ऐसे ही लटाए रहने दो. नेवर शेक इट. हम एक्रेलिक कलर्स शेक करते हैं, ग्लास कलर्स भी नेवर टच इट. इन फैक्ट जैसे अगर वो ऐसे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जो कलर मैं यूज नहीं करूंगी. लाइक इफ इट इज वाइट, मैंने इसको ऐसे से शेक कर दिया. इज इट विजिबल? इसमें कितने सारे बबल्स आ गए हैं. पता नहीं कैमरा में इट इज विजिबल और नॉट, बट ग्लास कलर्स आर नेवर शेक्ड. अच्छा, शेक योर ब्लैक वाटर वंस. ओके ओके, ये मैं भी करती हूँ मैम. मैम इट विल टेक अराउंड 4 to 5 hours. ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. 4 to 5 hours में जाके ग्लास कलर इसमें सेट होगा. तो हमें थोड़े थोड़े टाइम पे इसको हिलाना पड़ेगा बॉटल को. और यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है एक्स्ट्रा कलर्स है, उसको दोबारा से यू हैव टू क्लीन इट. क्योंकि कोई भी चीज पैची नहीं लगनी चाहिए.
You have to fill it by dabbing method. I'm taking थोड़ा सा brown. Cleaning my brush. और मैं कहीं कहीं पे I'm giving a brown effect. If you want आप दो कलर्स को मिक्स भी कर सकते हो. लाइक अगर मैं यहाँ से पिंक से स्टार्ट करूँ और यहाँ पे मैं ब्राउन दे रही हूँ तो यू कैन ब्लेंड टू कलर्स ऑल्सो. तो वो ब्लेंडिंग नजर आएगी इसके अंदर. When these colors completely dry, तो मुझे इसके ऊपर पूरा 3D कलर एक बार दोबारा से चलाना पड़ेगा to give the 3D effect. अभी ये दोनों साइड ड्राई है, गीली हैं, तो मैं इसके ऊपर वर्क नहीं करूंगी. मैं सिर्फ इधर ही वर्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइनर ड्राइड है. तो अब हमें पूरा जो हमारा 3D वर्क है उसको दोबारा से करना है. उससे पहले व्हाट वील डू इज these type of glitter comes these are very easily available in the market. अब what we can do is कि कहीं कहीं पर अगर आप उस पिक्चर में देखोगे तो glitters यूज हुए हैं. So I'm opening some glitters. मैं फैब्रिक ग्लू भी दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस. अगर आपको करना है तो करो, नहीं तो इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस. आप इस टाइप का भी ग्लिटर हमारा फेविक्रिल का यूज कर सकते हो, वो भी सेम इफेक्ट देगा. बट मुझे इसको इस वे में बनाना है तो मैं इसको ऐसे भी करके दिखा रही हूँ आपको.
विंटर्स में जनरली ये ग्लूज थोड़े टाइट हो जाते हैं. थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कलर बाहर आ गया. जस्ट वाइपिंग इट विथ Q-tip. दिस इज वाई मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि Q-tip इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनरली ये होता है इसमें. मैंने अपने ब्रश में फेविकॉल लगा लिया है, दिस फैब्रिक ग्लू, और मैं इसको यहाँ लगाऊंगी थोड़ा सा. और यहाँ लगाया. दिस इज completely optional guys. It is your choice if you want to add glitter or not. फेविकॉल वाले ब्रश में मैंने ग्लिटर लगाया and I am just dabbing here. When it will dry, what will happen कि फेविकॉल जो है फैब्रिक ग्लू हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और हमें सिर्फ ग्लिटर नजर आएगा. तो मुझे कहीं और भी अगर देना है, जैसे अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ देना है, मैं सेम ब्रश से जहाँ जहाँ मुझे देना है आई कैन अप्लाई द ग्लिटर. अभी मैं बाकी का आर्टिकल आपको करके नहीं दिखा सकती क्योंकि दिस इज वेट. आई एम जस्ट कीपिंग इट असाइड. आई एम जस्ट क्लीनिंग माय प्लेस. और मैं आपको कल के लिए लिपन आर्ट का जो वो है बेस, I'll complete this bottle, this jar, and post in the group. I'm just cleaning my workstation. You can do on either kind of jar. Now this is the nameplate which was there on the flyer. I hope it is visible. Is it visible, guys? Can someone give me a thumbs up? Is it visible? Can someone please give a thumbs up if it is visible? Okay. And this is in the Lippin art, and this is also in the Lippin art. This is the grid. This is the grid Lippin art, and this I have created the nameplate. But I have many requests for doing the nameplate, so I am doing the nameplate. I am not doing the circular grid. One more thing I wanted to show is, अगर आप इसको क्लियरली देख पाओगे तो यहाँ पे ना कहीं कहीं ब्रेकेज आया हुआ है. Is it visible, guys? देखो यहाँ पर जैसे कहीं कहीं पर if you can see कि थोड़े थोड़े गैप्स आए हुए हैं यहाँ पर जगह जगह. तो actually this is not done on molded. This is not done from molded. That is why ये आया हुआ है. I have tried coning work. तो मुझे किसी ने उस दिन टेक्सचर उसमें पूछा था कि मैम टेक्सचर में पीओपी क्यों नहीं यूज कर सकते हैं. तो पीओपी से ये रिजल्ट आता है. POP breaks. After some time, what happens? It breaks. And especially on cardboard, POP जगह जगह से it breaks and it gets stretched. जो मैं आपको उस दिन बता रही थी कि आप if you are able to see, जब मैंने इसको बनाया था तो ये बिल्कुल सही पोजीशन पे था
but gradually with time what is happening is it is stretching itself. So that is why I don't recommend POP. And if you are able to see this is around 2 years back I have done this work, and this is done with molded, and this is as it is. इसमें कुछ भी नहीं हुआ है. So I'll do with the nameplate. Now this is the nameplate. If you want, someone was asking for the nameplate that can I take, for the Lippen art, someone was asking can we take cake base. When we do Lippen art on cake base, if you do light design, then it is okay. Because heavy design होने के बाद वही प्रॉब्लम होता है कि वो ये हो जाता है, it demolds sometimes, it de-shapes. जैसे अगर आप इसको देखोगे ना, तो this is also a cake base. This is also cake base, but वही हो गया है कि शायद ये वर्क बहुत हेवी कर दिया मैंने इसके ऊपर, क्योंकि उस वक्त शायद मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी. तो इसका इज इट विजिबल कि इसका जो बेस है ना वो टेढ़ा हो गया है, इट हैज बेंड. तो इन माय ओपिनियन अगर आप केक बेस या कोई हल्का बेस यूज कर रहे हो तो या तो उसको कार्डबोर्ड से डबल कर लो, बिकॉज विद टाइम तभी एकदम तो कुछ नहीं होगा, बट विद टाइम क्या होगा कि इसका हेवीनेस से जो बेस है वो टेढ़ा हो जाएगा. तो इट इज प्रेफर्ड डू ऑन हेवी कैनवस और MDF. ये नेम प्लेट के लिए ही स्पेशली होता है. MDF जो कटिंग्स मिलती है मार्केट में. This size is 6 by. This is approximately 6 by 15. What I am using. तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डिजाइन बता रही हूँ कि मैं वो वाला सेम डिजाइन नहीं ले रही हूँ. अब whenever you are doing Lippen work, the first thing is आपके पास कौन से मिरर्स हैं. आप अपना डिजाइन जो है वो आप मिरर्स के अकॉर्डिंगली ही बनाओगे. अगर सपोज करो कि आपके पास मिरर्स बहुत बड़े हैं तो आपका लिपन जो है वो जो गैप्स आएंगे वो बड़े आएंगे. और अगर आपका डिजाइन आपके पास मिरर्स छोटे हैं तो आपको उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा. तो मेरे पास बहुत बड़े मिरर्स नहीं है इस वक्त, मेरे पास छोटे ही मिरर्स हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही मैंने डिजाइन बनाया है. तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं उसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको डिजाइन को. This is my nameplate. Suppose till here it is my nameplate. Like this. This is my nameplate. अब मैं इसके ऊपर एक बॉर्डर लूंगी. और जितना मैंने ऊपर लिया है उससे ऑलमोस्ट डबल मैंने बॉर्डर नीचे ले लिया है. दिस डिजाइन आई एम ड्राइंग ऑन पेपर, ताकि मैं कल इसके ऊपर ये बना के रखूंगी डिजाइन, ताकि क्लास में टाइम वेस्ट ना हो हमारा. इतनी हो गई अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली हमारी जो नेम प्लेट होगी वो ये हो जाएगी एक तरीके से. This will be our name plate.
अब मैंने नीचे थोड़ा चौड़ा बॉर्डर दे दिया है और ऊपर थोड़ा पतला बॉर्डर दिया है। अब यहाँ पर तो आई एम जस्ट गिविंग दिस डिजाइन। क्योंकि एक दिन में लिपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पे लीव्स, दिस विल ऑल बी ऑफ मोल्डेड। या मोल्डेड से बनाएंगे। एंड इफ यू वांट यू कैन यूज मिरर्स आल्सो, इट इज योर चॉइस। फिर यहाँ पे व्हाट विल डू, दिस also we'll create flowers. This is the basic lip and design which I am going to teach. ये मैं आपको एक रफ इसका वो बता रही हूँ। This will be all using molded. I hope you are able to understand what I am doing. If anyone has a doubt, please ask me right now. I hope I'm making myself clear. This way नीचे एक border आ जाएगा पूरा। एक border we have given upwards. यहाँ पे what we will create half semicircle. To create the petals. Then again a circle. I am going to make this design. फिर यहाँ पे I am giving 2 arm beads. And यहाँ पे again, this is the design of the nameplate which I am going to do tomorrow. अब हम चाहें तो we can give mirrors here also in bunch of 3. Because lip pen में choosing the design is quite critical. What you want to choose, first you have to have the main focus on the design, and you have to choose your design according to your glasses which are available with you. अगर आपके पास glasses available नहीं है इस टाइप से, मैंने ये डिज़ाइन इस हिसाब से चूज किया कि मेरे पास इसके मिरर्स अवेलेबल हैं जो मुझे इसके अंदर फिल करना है। इसके अंदर सर्कुलर मिरर्स आएंगे, यहाँ पर सभी सर्कुलर मिरर्स आएंगे और यहाँ पे छोटे मिरर्स आएंगे। तो आई हैव देम, तो मैंने इस वजह से ये वाला डिजाइन चूज किया है। और यहाँ पर वी कैन राइट द इनिशियल्स और व्हाटएवर यू वांट टू राइट, योर हाउस नंबर और योर सरनेम। दिस इज द बेसिक आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो। आई होप इट इज क्लियर। तो अब मैं ये वाला डिज़ाइन कल इसके ऊपर बना के रखूंगी ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी। अच्छा, आई हैव टू डबल दिस। अब जब ये कंप्लीटली सूख जाएगा, मेरा भी गीला है ये, इससे मैं इसके पास ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। जब ये कंप्लीटली सूख जाएगा तो वी हैव टू गिव अनदर कोट। like this above the 3D liner we have used.
उससे जितना भी, सबसे पहली बात, जितना भी ग्लास कलर हमारा बाहर आया है वो कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हमारा जो 3D इफेक्ट जो हमें उस मिरर में उसमें नज़र आ रहा है पिक में, गूगल रेफरेंस पिक में, वो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो दिस स्टेप इज़ वेरी नेसेसरी। मेरा अभी ये कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज एज इट इज़ विंटर्स, तो ड्राई होने में बहुत टाइम लग रहा है। ये भी मैंने कहा अभी मॉर्निंग में करके रखा था, तो अभी भी स्टिल इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ड्राइड। तो इसलिए मेरा जब ये आर्टिकल एक दिन में मे बी कल तक खत्म अगर हो गया, तो कल तक आई शेयर द पिक। You have to do it like this, and please 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 it's a humble request कि इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ सबमिशन आई डोंट नो वो कहाँ चले जाते हैं। प्लीज इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आर्टिकल्स को सबमिट कर दो, बिकॉज मुझे, मतलब मुझे नहीं, सारी फेविक्रिल टीचर्स को हम 2-2 आर्टिकल्स बनाते हैं और हम पूरा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद जब सबमिशन नहीं आते तो बहुत अजीब, बहुत खराब लगता है। So please guys, make the submissions. I am not asking for very big articles. You can make small articles and submit to me. I really don't mind. आपको आर्ट आना चाहिए कि किस तरीके से किया हुआ है, बस वो आना चाहिए। Thank you everyone for joining the session. We'll be meeting tomorrow at the same time, 4 o'clock, for a lip and art nameplate. And I just hope कि एक क्लास में वो complete हो जाए। Till then, please be safe. Thank you so much for joining. Bye bye.